Hello everyone, this is a subscriber demand video having a positive mindset. So let's get started. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट इस फ्रेज का मतलब क्या होता है और लेट्स से इस फ्रेज को हमने ज़्यादा करके इसके रिस्पेक्ट में क्या चीज़ें सीखी है. नाउ जनरली द थिंग्स दैट वी हैव लर्नड विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेज इज दिस: अच्छा सोचो, सब अच्छा होगा, बुरा मत सोचो, थिंग्स विल बी ग्रेट एट द एंड, गुड एट द एंड, राइट? बट दिस इज अ प्रिटी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस फ्रेज. आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट इस फ्रेज के रिस्पेक्ट में आपको 100% क्लैरिटी मिल जाएगी. सबसे पहले हम ये समझते हैं एक एनवायरनमेंट को हम पॉजिटिविटी का लेबल कब लगाते हैं. When things happening in the external environment happen in our favor, we tell that something positive is happening. And when things happening in the external environment happens against our favor, हम ये कहते हैं कि things are happening in a negative fashion. और let's say negativity आ गई है. कई बार ऐसे होता है कि some incidences happen, let's assume कि कुछ बहुत बुरा हो गया है, टचवुड ऐसा ना हो. हम ये कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और ये कहते हैं एट टाइम्स कि वो बंदी या वो बंदा कितना पॉजिटिव है. वेल, दिस इज एन एक्सट्रीमली रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, क्योंकि अगर हम इसी माइंडसेट से चले कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, then it's like we are escaping from the worst case scenarios of our lives. मतलब having this mindset, let's hope for the best, इसमें कुछ गलत नहीं है. But having this mindset, let's hope for the best, only considering best case scenario and not considering worst case scenario, ये बहुत गलत है. मतलब होता क्या है, if we go by this thought process कि things are happening, जो हो रहा है happens in our favor, and if we term this as positive mindset, then what is happening is we are escaping from those scenarios जो हम नहीं चाहते हैं कि होने चाहिए. And होता क्या है, if we escape from these scenarios considering कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है एंड वी आर थिंकिंग कि हम कितने पॉजिटिव हैं, देन वी आर अलाउिंग फियर टू टेक बर्थ इन आवर माइंड्स. एंड इफ दिस फियर बिल्ड्स अप प्रीटी स्ट्रॉन्ग, देन दिस मे अफेक्ट टू आवर कॉन्फिडेंस एंड एस्टीम टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आना बहुत जेन्यून है वो ये है, तो पॉजिटिव माइंडसेट एग्जैक्टली रहता क्या है. वेल, बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट लेट मी एक्सप्लेन वन मोर थिंग. कोई सिचुएशन पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं रहती. वी नीड टू डाइजेस्ट दिस थिंग वेरी वेल. कोई सिचुएशन पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं रहती. व्हेन थिंग्स हैपन इन आवर फेवर वी से इट्स pretty positive, and it doesn't, we say it's negative. For example, a very small example, suppose a match is going on and if the match is between team A and team B, if team B wins, then team B says कि things are happening in their positive favor, and the same situation turns out to be negative for team A. It's a very simple example to explain that situation को हम अपने requirements के fulfillment के हिसाब से label लगा देते हैं कि ये situation positive है या ये situation negative है. A small illustration in this way. Okay. Then what is the right mindset? I would not say that positive mindset is something that we need in difficult times, in challenging times. I would say we need a correct mindset in difficult times or challenging times. Sure, at this moment आपको ये आइडिया डेफिनेटली मिली होगी कि being positive
is not escaping from negativity, but being positive is embracing solutions even in worst case scenarios, मतलब even in negative scenarios. The mindset to be adopted in a given situation, be it positive, be it negative, is a correct mindset. What is this correct mindset? I'll explain. The correct mindset to be adopted in a given situation with respect to the external environment is a solution oriented mindset. ये बहुत आसान रहता है कि एक नॉर्मल सिचुएशन में हम अपने टास्क एग्जीक्यूट करें with efforts, right? Everyone can do that, but adopting the real positivity comes into picture जब हम worst case scenarios में और let's say negative scenarios में भी de-energized, demotivated ना हो ड्यू टू डिस्करेजिंग सिचुएशंस, मतलब ही नेगेटिव सिचुएशंस, मतलब ही वो सिचुएशंस जो हमारे फेवर में नहीं है. प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ढूंढे, उससे हम कहेंगे करेक्ट माइंडसेट, उससे हम कहेंगे पॉजिटिव माइंडसेट. इट्स सेड टू हैव अ करेक्ट माइंडसेट व्हेन हम नेगेटिव सिचुएशंस में, डिस्करेजिंग सिचुएशंस में, डीमोटिवेटिंग सिचुएशंस में भी सेम एनर्जी मेंटेन करें, सेम मोटिवेशन लेवल मेंटेन करें एंड विद द सिमिलर ज़ील जो हम पॉजिटिव सिचुएशन में रखते हैं, नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉसिबिलिटी ढूंढे. आई एम श्योर ये चीज़ तो 100% क्लियर हुई रहेगी कि पॉजिटिव माइंडसेट का करेक्ट मतलब क्या रहता है. बीइंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड in any kind of situation that life throws at us, be it in our favor or be it against our favor. Not focusing on problems but only focusing on solutions and possibilities. That is how things work well. So the next question is, इतना possibility oriented कैसे रहे? Well, इसका भी एक बहुत simple solution है. I highly recommend to all the viewers who have come till this point of the video to check out this link on Brain Diet, and congratulations for your patience, क्योंकि since you have come this far in this video, I highly recommend आप ये video check करो Brain Diet, wherein I have explained that how content consumption decides how we respond in a given situation. मतलब short में explain करूँगी. जो चीज़ें हम प्राइमरीली देखते हैं और सुनते हैं बार बार कंसिस्टेंटली, वो चीज़ें हमारे थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं. एंड एज आई सेड, कंसिस्टेंटली अगर हम करें तो वो हेविली इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो चीज़ें हमारे रेफरेंसेस बन जाते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम एक गिवन पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्ट करते हैं. अगेन शॉर्ट में कहूँगी तो इंफॉर्मेशन इन इज इंफॉर्मेशन आउट, द अदर वे अराउंड, कचरा इन कचरा आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट. सो इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू हैव द कंटेंट कंजम्पशन, that is the type of movies, the type of talks, the type of related, serials, music, everything to be such that कि वो हमारे फेवर में है. Those experiences that we are intaking through these references must be solution oriented. They should not be problem oriented. They must guide us when the right time comes for them to guide us in a given situation. और एक चीज़ ध्यान में रखनी है for sure, having this positive mindset or solution oriented mindset requires our peaceful attitude. एक relaxed mindset होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा relaxed mindset रहेगा, एक unrestless mindset रहेगा, एक peaceful mindset रहेगा, तो हमारी थिंकिंग को प्रोडक्टिव होने के लिए अच्छे ट्रिगर्स मिलेंगे. खाई गड़बड़ नहीं करनी है, अच्छे से टाइम निकाल के
पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करके अपनी सिचुएशन क्रैक करनी है। Hey guys, this is Pranjal Vyas and I make videos on self growth, productivity and motivation. अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है then come join my YouTube team. करना क्या है, सब्सक्राइब बटन को हिट करना है एंड उसके बाजू में जो बेल आइकन है हमें उसे भी क्लिक करना है सच दैट व्हेन ऑन एवरी सैटरडे मैं मेरी वीडियो पोस्ट करूँ आपको अपडेट्स मिलते रहे। सो स्मैश दैट लाइक आइकन सच दैट मेरा भी मोटिवेशन लेवल मेंटेन रहे। इफ यू वांट मी टू क्रिएट वीडियोस ऑन सर्टेन टॉपिक दैट इज दिस इज अ सब्सक्राइबर डिमांड वीडियो इन अ सिमिलर वे, अगर आपको मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है देन ड्रॉप योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल रिस्पॉन्ड देम। Till then, thank you, all the best, Vinanka.